تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، ہمارے گروپ کے ممبران، کچھ احباب نے عید کی نماز کے سلسلے میں سوال کیا ہے کہ عید کی نماز میں کیا کیا چیزیں اپنائی جائیں. تو اس سلسلے میں ہمارے شاگرد عبدالہادی سلمہ نے اور معاذ نے بھی سوال مجھ سے کیا تھا، اور اچھا ہوا کہ عبدالہادی صاحب نے اس سلسلے میں ایک تحریر بھیجا ہے. میں اس تحریر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عید کی نماز ہر مسلمان مکلف پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے. لہذا عید کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے زبردست، کیونکہ یہ دینی شعار میں شمار ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہے، اور مسلمان اللہ رب العالمین کی بندگی کا اظہار اس نماز کے ذریعے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر، جس کو فطرہ آپ کہتے ہیں، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں وعید ہے کہ جس شخص نے عید سے پہلے فطرہ ادا کر دیا اس کا فطرہ مقبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا کیا اس کا فطرہ نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ مانا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں 1503 نمبر پہ دیکھی جا سکتی ہے. عید کی نماز کے سلسلے میں یا عید کے دن کے سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں غسل کرنا چاہیے، اور غسل کرنا ظاہر ہے یہ نظافت کا باعث ہے، اور عید ایک خوشی ہے. اس خوشی میں انسان کو انتہائی صاف ستھرا نظیف ہونا چاہیے. ارواء الغلیل میں غسل کرنے کی حدیث تیسری جلد کے 104 نمبر پر موجود ہے. ایسے ہی ہمیں ایک اور کام جس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عید کے دن عمدہ کپڑا زیب تن کیا جائے. عمدہ کپڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیا کپڑا سلایا جائے، بلکہ جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو بہتر ہو اس کپڑے کو پہننے کی کوشش کرنی چاہیے. زاد المعاد میں پہلی جلد کے 121 نمبر صفحہ پر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. عید الفطر میں کچھ کھا پی کر عیدگاہ جانا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک انعام ہے کہ ایک مسلمان پورے مہینے روزہ رکھتا ہے، لہذا عید کی خوشی میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائے، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے عیدگاہ جائے، اور عید کی نماز سے لوٹ کر آنے کے بعد کھانے کی کوشش کرے. بہتر یہ ہوگا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو کھائے، لیکن عید کی نماز میں کچھ گھر سے کھا کر ہی جائے، کھجور کھا لے، کچھ چیز کھا لے بہرحال، تاکہ روزے کی کیفیت باقی نہ رہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 953 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے. ایسے ہی عیدگاہ جانے کے لیے اس بات کا بھی خیال ہو کہ عیدگاہ انسان پیدل جائے، اللہ کی تکبیر کو پڑھتا ہوا جائے، کیونکہ ابن ماجہ 1294 پر یہ حدیث موجود ہے کہ عیدگاہ انسان پیدل جانے کی کوشش کرے. ایسے ہی تکبیر کے کلمات کو ادا کرتے ہوئے عیدگاہ جانے کی کوشش کی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اور بھی تکبیر کے کلمات ہیں، ان کلمات کو پکارتا ہوا عیدگاہ جانا چاہیے. مرد بلند آواز میں، جبکہ عورتیں پست آواز میں تکبیر کے کلمات کو کہتے ہوئے جائیں گی. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں 394 جبکہ صحیح مسلم میں 890 پر یہ حدیث موجود ہے. عید میں عام طور پر لوگ اسلامی آداب کا لحاظ نہیں کرتے، خوشی کے نام پر بے حیائی کا، بے پردگی کا اور بے جا اختلاط کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو چیز ہماری عید کے خوشی کے خلاف ہے. لہذا ہمیں عید کے دن بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اور نوجوان بچیاں خاص طور پہ ایسا لباس زیب تن کریں جس سے ان کی عفت اور پاک دامنی
का सबूत मिले। इस्लामी हदूद का लिहाज रखना ये हमारी इस्लामी शनाख्त होगी, लिहाजा मुकम्मल हिजाब के साथ औरतों को ईदगाह ले जाया जाए। हदीस में चूँकि ईद एक ऐसा शिआर है जिसमें अहले खाना यानी तमाम घर के अफराद को हाजिर होना चाहिए। हदीस में यहाँ तक ताकीद की गई है कि वो कुंवारी औरतें जो घरों से कभी नहीं निकलती हैं, ईदगाह वो भी जाएं। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है सवाल किए जाने पर कि जिन औरतों के पास कुशादा चादर नहीं, वो अपनी बहन की चादर में लिपट कर ईदगाह जाने की कोशिश करें। यहाँ तक वजाहत की गई है कि वो औरतें जिन पर ईद की नमाज फ़र्द नहीं है, मसलन हैज़ से हैं वो या निफास से हैं वो, ऐसी औरतें भी ईदगाह जाएंगी ताकि वो तकबीर के कलिमात को पुकारते हुए बुलंद करते हुए जाएं और ईद में जा कर के इमाम का खुतबा सुने, मुसलमानों की दुआ में शामिल रहें। अलबत्ता वो ईदगाह के पिछले हिस्से में औरतों की सफ़ के पीछे बैठेंगी क्योंकि उन्हें नमाज नहीं पढ़ना है, अलबत्ता बरकत को हासिल करना है, दुआ में शामिल होना है, खुतबे को सुनना है और ईद की फजीलत को, मुसलमानों की इज्तिमाइयत को साबित करना है। मगर अफसोस कि आज मुसलमान जहाँ मुसलमानों की इज्तिमाइयत को साबित करने का इस्लाम हुक्म देता है, वहाँ जाना बाइस फितना समझते हैं और ऐसी जगहों पर हाज़िरी देने में कोई आर महसूस नहीं करते जहाँ पर इस्लाम हाजिर होने से रोकता है। मसलन औरतों का इज्तिमा मज़ारों पर, औरतों का इज्तिमा बाज़ार में, औरतों का इज्तिमा मसलन शादियों में, औरतों का इज्तिमा मसलन इलेक्शन के मौके पर, औरतों का इज्तिमा मसलन या लड़कियों का इज्तिमा कॉलेजेस में, इन जगहों पर इस्लाम की तरगीब नहीं है। लेकिन हमारा माशरा अपनी बच्चियों को वहाँ भेजते हुए कुछ भी आर महसूस नहीं करता और ईद और बकरीद साल में 2 इज्तिमा और घर के तमाम अफराद एक साथ जाएं इज्तिमाइयत का सबूत देते हुए, वहाँ मुसलमान अपनी औरतों को ले जाते हुए कतराता है। ये हमारी खामख्याली है और इस्लाम से दूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमारी दूरी है, सहाबा किराम के ज़माने से हम वाकिफ़ नहीं हैं, लिहाजा हमारी औरतें ईदगाह नहीं जाती हैं, जबकि हमें उसका नज़्म करना चाहिए जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसका एहतमाम था, सहाबा किराम के ज़माने में एहतमाम था और आज भी पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहतमाम पाया जाता है, इल्ला कि कुछ ख़ास तबका है जो इससे अपनी औरतों को दूर रखता है। यह हदीस अगर आप तलाशें तो सही बुखारी में 971, सही मुस्लिम में 890 में मौजूद है। ऐसे ही बच्चों को ईदगाह ले जाना ये हमारी इस्लामी शिआर की अलामत है। सही बुखारी में 975 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। ऐसे ही एक बात याद रखने की है कि ईदगाह में नमाज ईद से पहले या नमाज ईद के बाद कोई सुन्नत या नफिली नमाज नहीं है। सही बुखारी में 989 पर और सही मुस्लिम में 884 पर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ईदगाह जाते थे, ईदगाह में बैठते थे, यहाँ तक कि इमाम नमाज पढ़ाए और फिर खुतबा दे। तो ईद की नमाज से पहले या नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है जिसको हम सुन्नत या नफिल कह सकें। अलबत्ता सलात ईद के बारे में जानना चाहिए कि ये नमाज सिर्फ 2 रकात है और 2 रकात नमाज सुनन निसई में 1419 नंबर पे मौजूद है, इब्न माजा में 1063 नंबर पे हदीस मौजूद है। ऐसे ही ईद की नमाज के सिलसिले में ये बात भी हमारे जानने की है कि ईद की नमाज में अदान और इकामत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन इबादत को जिस तरह फ़र्द करार दिया है, हमें उन इबादत को उसी तरह अंजाम देना चाहिए। ईद की नमाज आप गौर कीजिए कि हमारी सालाना नमाज है, हमारा सबसे बड़ा इज्तिमा है हज के इज्तिमा के बाद, लेकिन इस नमाज में अदान और इकामत का एहतमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। यह हदीस बुखारी में 960 और मुस्लिम में 887 पर मौजूद है। तकबीर तहरीमा, ऐसे ही तकबीर तहरीमा और दुआ सना के बाद और क़िरात से पहले, तो तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर और दुआ सना के बाद और सूरह फातिहा की क़िरात से पहले 12 ज़ायद तकबीर होंगी। पहली रकात में 7 और दूसरी में 5, यानी 12 ज़ायद तकबीर बग़ैर रफ़उल-यदैन के। पहली रकात में 7 और दूसरी में 5 तकबीरात कही जाएंगी। यह हदीस सुनन अबू दाऊद में 1149 और 1151, सुनन तिरमिज़ी में 536 और सुनन इब्न माजा में 1280 पर मौजूद है। बहरहाल पता ये चला कि ईद की नमाज हमें 12 ज़ायद तकबीरात जिनको आप कह सकते हैं उनसे अदा की जाए। अलबत्ता 7 तकबीरात से पढ़ने के सिलसिले में भी बाज़ रवायतों में इसका जिक्र है और इस पर भी
अमल बाज़ सहाबे किराम के यहाँ भी मौजूद है। ऐसे ही सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में सूरह कमर या सूरह आला और दूसरे में सूरह काफ या सूरह अल-गाशिया, यानी सूरह कमर के साथ सूरह काफ और सूरह आला के साथ सूरह गाशिया पढ़ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यही आपका मामूल रहा। आज अइम्मा हजरात अक्सर इसकी मुखालफत करते हैं, जबकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल ताबेदारी करने का हुक्म दिया गया है। यह हदीस सही मुस्लिम में 878 पर या 891 पर भी मौजूद है। ऐसी ही एक बात जिसका जानना हमारे लिए बहुत मुफीद होगा कि नमाज के बाद एक खुतबा है। सही बुखारी में 963 पर और सही मुस्लिम में 884 पर यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाया और आपने एक खुतबा दिया, यानी जुमा के खुतबे की तरह से ईद का खुतबा नहीं है। और खुतबा के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स चाहे खुतबा सुनना वो बैठे, उसकी फजीलत और सवाब को हासिल करे, और जो लौटना चाहता हो उसे लौटने की भी इजाज़त है। बहरसूरत एक और बात जिसका ख्याल ईद की नमाज के लिए ज़रूरी है, लोगों से मुलाकात के वक्त मुबारकबादी देना, और मुबारकबादी के अल्फाज तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनक, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनक व अहाल अलैना व अलैकुम, ये ईद का चाँद देखने के बाद भी मुबारकबाद दी जा सकती है, और ईद की सुबह भी ये मुबारकबाद देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा किराम से साबित है। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनक व अहाल अलैना व अलैक, ये फतहुल बारी में दूसरी जिल्द के 486 पर और तमामुल मिन्ना में शेख अलबानी रहमुल्लाह ने 354 पर इसको जिक्र किया है। ऐसे ही जुमा के दिन अगर ईद पड़ जाए तो जो चाहे जुमा पढ़े और जो चाहे ना पढ़े, यानी ईद चूंकि जुमा से बड़ी है, इसलिए अगर जुमा के दिन ईद पड़ती है तो ईद की नमाज पढ़ने वाले को जुमा पढ़ने से रुखसत दी जा सकती है, अगर चाहे वो जुमा पढ़े और चाहे ना पढ़े। अलबत्ता सवाल ये है कि ईद के दिन, ईद अगर जुमा के दिन पढ़ती है तो ईद पढ़ने वाला शख्स अगर जुमा नहीं पढ़ता तो उसको जोहर पढ़ना होगा या जोहर नहीं पढ़ना होगा। सही बात है कि उसे जोहर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता इमाम की जिम्मेदारी यह है कि वो जुमा का खुतबा दे, जुमा कायम करे, क्योंकि जुमा भी एक शिआर है और दोनों शिआर अदा करना इमाम की जिम्मेदारी है। अलबत्ता बाकी लोगों को जुमा पढ़ने में इख्तियार दिया जाएगा कि अगर जुमा में हाजिर नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती हाजिर होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता ज़ोहर उनको पढ़ना चाहिए। यह हदीस सुनन अबू दाऊद में 1073 और इब्न माजा में 1310 पर मौजूद है। ऐसी ही एक बात, जिस शख्स की ईद की नमाज छूट जाए, आदमी को ईद में सुस्ती नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं नौज़बिल्लाह जो ईद के दिन भी सुस्ती और गफलत में घर में ताख़ीर करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि ईद का जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, लिहाजा उनकी ईद की नमाज छूट जाती है। लिहाजा जो शख्स उद्र के साथ ईद की नमाज जिसकी छूट जाए, मसलन वो शख्स वाकई में बहुत थका हुआ तो सो गया या सफ़र से आया तो उसकी ईद की नमाज छूट गई, लिहाजा जिस शख्स की भी ईद की नमाज छूट जाए उसके लिए जायज़ है कि वो 2 रकात पढ़ेगा, उसके लिए जायज़ है कि वो 2 रकात पढ़े, ईदगाह जाकर ही 2 रकात पढ़े, लेकिन वो 2 रकात पढ़े। यह हदीस सही बुखारी में 987 पर मौजूद है। ये ईद के सिलसिले में चंद बातें थीं, मुझे उम्मीद है कि ये बातें वाज़ेह होंगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन नेक बातों पर अमल की तौफीक दे, और मैं अजीज़म अब्दुल हादी बिन शौकत अली का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में और अमल में बरकत दे और हमारे ग्रुप के तमाम मेंबरान को इन सही बातों को समझने और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।